میں آپ لوگوں میں ہوں. میں نے کبھی اپنا گھر نہیں چھوڑا ہے. میں وہ سیزنلی بندہ نہیں ہوں جو کہ 7 سال یا 6 سال کے بعد زمین پر پھر واپس آؤں گا. یا میں عارضی رہائش پذیر لولاب کا نہیں ہوں کہ فاروق میر نے اپنا جیون، اپنا سب کچھ آپ کا نثار کیا. پچھلے 25 سالوں سے میں آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں. کبھی میں کبھی لوگوں سے دور نہیں گیا. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی. ناظرین، جموں کشمیر میں اس وقت سیاست کا بازار گرم ہے اور سیاسی لوگ بھی لوگوں کو اپنی طرف قائل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کپوارہ کے وائس چیئرمین اور تجربہ کار سیاستدان حاجی فاروق صاحب، جو لولاب کانسٹیچوئنسی سے آزاد امیدوار کے طور یہ اسمبلی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. جی فاروق صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے روبرو کے آج کے شمارے میں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا فیضان بھائی. جی فاروق صاحب، آپ پیپلز کانفرنس کے ساتھ منسلک تھے، استعفیٰ کیوں دیا؟ دیکھیے فیضان بھائی، آپ مجھے بہت عرصے سے جانتے ہیں. چونکہ ڈی ڈی سی الیکشن جب میں نے 2020 میں بہت اچھی مارجن سے جیتا، تو اس کے بعد 1 سال کے بعد شاید میں نے پیپلز کانفرنس کے ساتھ آفیشیل جوائن کیا. جی 2 سال گزرنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ میں جس سوچ کا بندہ ہوں، جس سوچ کے ساتھ میں نے اپنی سیاست شروع کی ہے، ایک تجربہ کار دیرانہ سیاسی کارکن کے ہونے کے ناطے پارلیمنٹ الیکشن کے بعد مجھے لگا کہ اس جماعت میں مجھے گٹھن محسوس ہوئی، تو میں نے پی سی کو خیر آباد کیا. کچھ لوگ تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو لگا کہ آپ کو منڈیٹ نہیں ملنے والا ہے، اس وجہ سے استعفیٰ دیا. دیکھیے فیضان بھائی، آپ ایک سینئر صحافی ہیں. اس وقت جانتے ہیں آپ، میں الیکشن میدان میں ہوں. میں نہ کبھی منڈیٹ سے ڈرا ہوں، نہ میں کبھی کوئی پرواہ کی ہے. منڈیٹ لوگوں کا ہونا چاہیے. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حلقہ انتخاب لولاب سے میں بحیثیت آزاد امیدوار الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں. جی آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں تو آپ کو بخوبی پتہ ہے. جی 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 حاجی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ڈی ڈی سی الیکشنز یہاں پہ ہوئے اس میں آپ نے بھاری اکثریت سے جیتا وہ الیکشن، تو آپ نے اپنے علاقے کی فلاح و بہبودی کے لیے کیا کیا؟ دیکھیے فیضان بھائی، یہ بات صحیح ہے. میں اس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں جس علاقے میں سے کو آج تک ہر ایک اس انسان نے سیاسی استحصال کیا تھا جس کو یہاں کے لوگوں نے چنا تھا. بہت دیرینہ کٹھن محنت کے باوجود یہاں کے لوگوں نے مجھے 2020 میں ڈی ڈی سی ممبر بنایا. جتنی تعمیر ترقی میں نے اس اپنے علاقے میں کی، میں دعویٰ سے کہتا ہوں جتنے بھی لوگ یہاں آئے، چاہے منسٹر بنے، ایم ایل اے بنے، ایم ایل سی بنے، آج تک کسی نے ایسا کام نہیں کیا. ٹیریٹوریل کانسٹیچوئنسی واورا کی بات کریں یا حلقہ انتخاب لولاب کی بات کریں یا آپ ضلع کپوارہ کی بات کریں، تعمیری ترقی کے حوالے سے میں نے بہت کچھ کیا جو میرا فرض تھا. اس وقت یہاں پر روڈ انفراسٹرکچر دیکھ سکتے ہیں آپ، ہیلتھ سیکٹر میں نے کام کیا، ایجوکیشن میں نے کام کیا، پاور کو سدھارنے میں نے کام کیا، پینے کے پانی کی 18 واٹر سپلائی اسکیم میں نے بنائی، گھر گھر میں نے پانی پہنچوایا، گھر گھر میں نے بجلی پہنچائی، گھر گھر روڈ میں نے یہ روڈ پہنچوائے. یہ سمجھو جہاں تک جس مقصد سے لوگوں نے مجھے منتخب کیا تھا، لوگوں نے مجھے اعتماد دیا تھا، انشاءاللہ الرحمن وہ میں مطمئن ہوں میں نے ایسا کام کیا جو کہ آپ کو گراؤنڈ زیرو پر دکھ رہا ہے. جی جی حاجی صاحب، آپ تو مطمئن ہیں، کیا لوگ مطمئن ہیں؟ انشاءاللہ امید ہے، مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے میں تو مطمئن ہوں اللہ کے فضل کرم سے، جو لوگوں نے مجھے اعتماد بھروسہ دیا تھا، جس پر لوگوں نے مجھے، دیکھیے میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، 20 سال سے لوگوں کے ساتھ زمینی طور جڑا ہوں. تو آپ یہ جانتے ہیں
नशे फराज हर चीज़ मैंने देखा है। हर उस कठिन मरहले में मैंने लोगों का साथ दिया, मैंने कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ा। यही नतीजा रहा कि इस वक्त बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार मुझे अपने उन हमदर्दों ने, उन साथियों ने, उन नौजवानों ने, उन भाइयों ने, उन बहनों ने इलेक्शन में उतारा जो लगातार पिछले 20 साल से मेरे साथ मुंसलिक हैं, जिनकी खिदमत मैं पिछले लगातार 20 साल से कर रहा हूँ। जी फारूक साहब, आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आपका वोट बैंक एक मखसूस इलाके तक ही महदूद है, क्या ये सही है? तो ऐसा नहीं है, लोला पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये तो सही बात है। वो लोग जिनको आज अपनी हार दिख रही है वो तो ऐसा ही कह सकते हैं। अच्छा, देखिए जिस इलाके से मैं ही नहीं, इस वक्त जो जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, नेचुरली वो मेरा आबाई वतन है, उनको अपनी आबाई वतन से प्यार होगा। जो मेरे साथ इस वक्त हरीफ कैंडिडेट हैं, चाहे सोगाम का है, दिवर का है, लालपुरा का है, इसमें थोड़ा आपको अच्छी तरह अंदाज़ा लगाना चाहिए। अब वो जो लोग, उनको ये पता है कि हमारी हार तय है। अल्लाह के फजल से हम कोशिश कर रहे हैं जीतने के लिए, जीतने के मतलब इरादे से हम मैदान में निकले हैं और लोगों का हमें बहुत इंशाल्लाह सपोर्ट है। हर एक तो बता ही सकेगा ये मखसूस नहीं, तो इस वक्त कुछ भी कोई कहे उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 99 पोलिंग बूथ्स हैं इस असम्बली हल्के इंतखाब लोलाब के। यहाँ मचल सेक्टर भी है, यहाँ ब्लॉक सोगाम भी है और ब्लॉक बावरा, तहसील सोगाम है, तहसील बावरा। मैं ये कहता हूँ हर जगह मेरे चाहने वाले हैं, मेरे साथी हैं, मेरे लोग हैं, जिनको आज तक मेरे हाथ से, जिन लोगों को मैंने आज तक हर मामले में आगे रहा हूँ, जिनके मैंने खिदमत की है। जी हाजी साहब, आप इस वक्त जो है अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और कई सियासी हरीफ यहाँ पर आपके मद्दे मुकाबिल है। मैं आपसे जानना चाहूँगा उनसे बेहतर आप कैसे हैं और उनसे मुख्तलिफ आप कैसे ये हैं? आप लोगों से पूछ सकते हैं। मैंने कभी अपना घर नहीं छोड़ा जी। डीडीसी मेंबर बना तो अपने घर में रहा, कभी सरकारी क्वार्टर में नहीं बना। 7 साल के बाद एप्लीकेशन 370 के बाद, यहाँ सरकार टूटने के बाद कभी मैं गायब नहीं रहा, हमेशा लोगों के साथ रहा। मैंने 370 जब टूटा उस वक्त मैं ही एक वो वाहिद पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पॉलिटिकल लीडर हूँ जो लोलाब से जेल गया। बिल्कुल मैं उस वक्त डिटेंशन में था 4 महीने के बाद मैं अपने लोगों में रहा, चाहे कोविड रहा, जिस वक्त भी मैंने कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ा, अपने लोगों के साथ रहा। वो लोग जो इस वक्त आर्जी रहाइश पजीर हैं लोलाब के, अक्सर श्रीनगर में रहते हैं, इलेक्शन का बिगल बजता है तो लोगों को मतलब सब्ज़ बाग दिखाने के लिए आते हैं। वो लोग जो पिछले 7 साल से गायब थे, जो सियासत का नाम ही नहीं लेते हैं, 1-2 महीने से वो इधर यहाँ एक्टिव हैं। और बाकी जो लोग जितने भी मेरे पॉलिटिकल हरीफ हैं, आप ये जानते हैं, तो आर्जी तौर उनकी रहाइश का लोलाब है, परमानेंट रहाइश का लोलाब नहीं है। मैं लोलाब वासियों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, लोलाब के लोगों से ये मेरी दरख्वास्त है, आप ज़रा फ़र्क करें। आपका साथी, आपका हमदर्द कौन है, आपका दोस्त कौन है? मैंने कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ा। मैं लोगों में हूँ, लोगों में रहूँगा और लोगों में ही मरूँगा। जी हाजी साहब, आप तो जीत के हवाले से पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा इस वक्त आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना सबसे बड़ा सियासी हरीफ किसको मानते हैं और किसके साथ आपकी टक्कर हो सकती है? देखिए 2-3 लोग तो हैं अक्सर जो मेरे शुरू से ही सियासी हरीफ रहे जी। 2-3 नाम लेना यहाँ अच्छा नहीं लगेगा मुझे। अब की बार इंशाल्लाह मैदान में देखेंगे कौन आगे आएगा, कौन पीछे जाएगा। देखिए तो इलेक्शन है, मैं इस वक्त अपनी तरफ से मुतमईन हूँ, अल्लाह पर भरोसा है मुझे और अपने लोगों पर भरोसा है, उन गरीब लोगों पर जिनकी मैं आवाज़ हूँ, जिन लोगों के लिए मैंने काम किया है, उन लोगों के लिए मैंने अपना जीवन निछावर किया है, उन लोगों के लिए मैंने अपने आप को वक़्फ़ किया है जो पिछले 20-25 साल से मेरे साथ लोग जुड़े हैं। मैंने कभी उन लोगों ने को नहीं छोड़ा, कभी मैंने कम्युनिटी बेस पर सियासत नहीं की, मैंने कभी ज़ात पात की बुनियाद पर सियासत नहीं की, मैंने हर एक को अपने साथ चलाने की कोशिश की। जी हाजी साहब, आप एक तजुर्बाकार सियासतदान है, आपने कई इंतखाबात लड़े हैं। आज के इंतखाब में आपको क्या कोई फ़र्क महसूस हो रहा है? देखिए इस वक्त पहले मशकूर हूँ मैं हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करने के लिए बाज़ाब्ता इक़दाम उठाए। 10 साल के बाद यहाँ असम्बली इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुख्तलिफ है, पहले ज़माने में क्या होता था, वो लोग जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को के साथ कैसा सलूक किया, जो बाइकाट ही सियासत करना चाहते थे, उन लोगों को आज डर है कि आज
70% 80% वोट लोग डालेंगे। हमें तो खदशा ये है कि कहीं ना कहीं हमारी नया डूब तो नहीं जाएगी। वो लोग उनका ये नारा ही था कि लोग कम असम्बली इंतखाबात में हो या पार्लियामेंट इलेक्शन हो या और कोई भी इलेक्शन में हो, उसमें कम हिस्सा ले जाएं ताकि वो उन्हीं के लोग जाते थे। अब की बार मुख्तलिफ है। आपने ये देखा होगा कि जोग दर जोग आज के नौजवान लोग जो हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में शरीक होना चाहते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज की बार लोलाब के लोग समझेंगे, लोलाब के लोग जानेंगे और जान चुके हैं। इस इलाके के साथ आज 40 साल से हमारे लोगों ने वोट दिए, वोट के बदले इनको क्या मिला हर एक को पता है। मुझे उम्मीद है, अपने लोगों पर पूरा भरोसा है, खुदा की रहम करम पर हम इंशाल्लाह हम है, अल्लाह ताला हमें रहम करेगा। हमारा जो मकसद है पिछले 40 साल से जिस मकसद के लिए ये इलाका लड़ रहा है, अल्लाह ताला हमें उस कामयाबी से हम किनार करेगा। और मेरी दरख्वास्त यही लोगों से रहेगी, आप अच्छा और बुरा जानने में फ़र्क कर सकते हैं। आज का वो ज़माना चला गया। कभी कोई सब्ज़ बाग दिखाता था किसी को, कोई लुभाता था किसी को। आज इंटरनेट का दौर है, हर एक को पता है कौन क्या करता है। बाकी मैं मुतमईन हूँ, कोशिश तो करनी है मुझे। देखिए अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। उम्मीद जो है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसलिए मैं भी पुरुम्मीद हूँ अल्लाह ताला हमारी फतह हमारी मुकद्दर में फतह लिखेगा। अभी तक आपको एक मखसूस इलाके की ज़िम्मेदारी थी, आप डीडीसी मेंबर है अभी, और अगर लोलाब के लोगों ने आपको मैंडेट दिया और आपको जिताया तो आपके पास क्या अज़ाइम है, क्या इरादे हैं, क्या रोड मैप है लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे ले जाने के हवाले से? हाँ फैज़ान भाई, अस्सलाम वालेकुम। चूँकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ जी, ये आपको पता है कि बहैसियत डीडीसी मेंबर मैंने हल्के इंतखाब लोलाब के लिए नहीं बल्कि ज़िले कुपवारा के लिए कितना काम किया बहैसियत वाइस चेयरपर्सन। इंशाअल्लाह रहमान उम्मीद है कि अब की बार लोलाब की गयूर अवाम मुझ पर भरोसा करेंगे, मेरे ख्वाब को शर्मंदा ताबीर करने में मुझे मौका देंगे ताकि मैं पूरा एक मॉडल लोलाब, नया लोलाब बनाऊँ। इस लोलाब में अल्लामा शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने जन्म लिया है। ये वो वादी है, एक खूबसूरत वादी, एक पसमानदा इलाका है जी, जहाँ पर आज तक हर एक सियासतदान ने इस इलाके के साथ सौतेली माँ का सलूक किया है और हमें सियासी इस्साल का सामना करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं लोलाब में बेरोज़गारी के खात्मे के लिए काम करूँगा, टूरिज़म मैप में लोलाब को लाऊंगा और एक नया लोलाब बनाने में अपना अहम रोल अदा करूँगा। जितने भी सेक्टर्स हैं, हेल्थ सेक्टर है अभी यहाँ कमज़ोर है, एजुकेशन सेक्टर है अभी यहाँ कमज़ोर है, एग्रीकल्चर सेक्टर को मैं घर घर पहुँचाऊँगा। जितने भी सरकारी स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं यहाँ और गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं, घर घर पहुँचाने में अपना अहम रोल अदा करूँगा। बिजली का निज़ाम जो कि अभी भी ठीक नहीं